morning students. Let's begin the video from where we left the last video. So to keep the continuation on, we have almost completed the realization of assets, whether they are recorded or unrecorded. Now it's time to discuss the realization of liabilities. The next step in realization will be the realization of liabilities. Okay, so let's start. The next accounting activity is the realization of liabilities. So liabilities are meant to be paid back. These all are the payments which the firm has to made, and at the time of dissolution, it is believed that all liabilities to be cleared. So when we make payment, again the same situation arises here, that liability could be of two types. Similarly, as we have dealt assets recorded and unrecorded. If payment is made to a recorded liability, then simple payment entry, the payment will reduce the cash. So I made a mistake, extremely sorry. Payment will reduce our cash, that's why we credit cash account. And liabilities are going to decrease, and whenever liability decreases, we debit it. But here the situation is different but same. Situation is different but it is similar as we dealt the condition in assets. जिस तरीके से एसेट में हम लोगों ने सारे एसेट और सारी लाइबिलिटीज को हम लोगों ने पहले भी पिछली वीडियो में देख चुका है, हम लोगों ने देखा है कि रियलाइजेशन में पहला जो स्टेप होता है, पहली जो अकाउंटिंग एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, क्लोज ऑल द बुक्स। तो क्लोज ऑल द बुक्स करते समय हम लोगों ने क्या किया था, एसेट्स और लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज करके उनके बैलेंस को हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफर किया था, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर भी जब डेबिट करना है लाइबिलिटी को, बट वी डोंट हैव सच लाइबिलिटी, वी हैव ओनली रियलाइजेशन, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लाइबिलिटी हो। तो यहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। getting the reason behind the recording, that is the motive, and my motive should be achieved. That will be the entry when we make payment to a recorded liability. Why we debited realization account? Because this is decrease in liability. Getting my point? Same entry will be done here. Realization account debit to cash account.
Again we are debiting realization account when we are paying unrecorded, when we are settling unrecorded liability. तो यहाँ पे हम लोगों ने रियलाइजेशन को डेबिट किया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रियलाइजेशन को क्यों डेबिट किया? क्योंकि हमारे बुक्स में ऐसी इस किसी भी लाइबिलिटी का ऐसी कोई भी लाइबिलिटी मेंशन नहीं है, और कोई भी लाइबिलिटी अगर मेंशन नहीं है, उसका पेमेंट मुझे 0 रुपया करना है लेकिन मुझे उसे 10,000 रुपया और देने पड़ गए, इट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट लॉस. शोज द लॉस. जिस तरीके से एसेट के ट्रीटमेंट करते समय हम लोगों ने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था अनरिकॉर्डेड एसेट में, क्यों? बिकॉज दैट शोज इनकम. सिमिलरली दिस इज शोइंग द लॉस. दैट्स व्हाई वी हैव debited realization when we are paying a unrecorded liability. So now almost every aspect of liabilities and assets are completed, and if we get any question based conditions, we will handle it according the question. Okay, now the next thing which you will get in this type of questions is treatment of realization expenses. So treatment of realization expenses, here could be two situations. One, no partner is appointed. Partner is appointed. तो अब हम लोगों को रियलाइजेशन का जो पूरी एक्टिविटी लीगल प्रोसेस है, इस लीगल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए अगर हम लोग किसी पार्टनर को कहते हैं कि वो उसका ख्याल रखे, तो वो सिचुएशन होती है कि हम लोगों ने रियलाइजेशन के लिए एक पार्टनर अपॉइंट किया है. लेकिन अगर हम लोग किसी पार्टनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं और सभी पार्टनर मिलके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो वो सिचुएशन होती है नो पार्टनर इज अपॉइंटेड. तो अगर कोई भी पार्टनर सभी पार्टनर मिलके उस चीज को उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री नॉर्मल एक्सपेंस के जैसे हम इसकी एंट्री करेंगे. जैसे जब भी एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस हमारे कैश को कम करता है, और एक्सपेंस हमारा रियलाइजेशन के थ्रू हो रहा है. अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पिछला अभी जो एंट्री किया है लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी ऑफ अनरिकॉर्डेड ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो उसमें हम लोगों ने रियलाइजेशन को वहां भी डेबिट किया था. दैट वाज शोइंग लॉस. तो जब भी लॉस और एक्सपेंस होगा हमारा, हम लोगों ने देखा है कि रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. ठीक है, ये कर दिया. ये सबसे सिंपल सिचुएशन है जब हमको सिर्फ एक एक्सपेंस की एंट्री करनी है. लेकिन अगर हम लोगों ने एक पार्टनर अपॉइंट किया हुआ है, उसके लिए अगर पार्टनर अपॉइंट किया है तो भी दो कंडीशंस हो सकती हैं. देयर कुड बी टू कंडीशंस मोर. टू मोर कंडीशंस वी हैव टू डील. फर्स्ट इज कमीशन is paid and no commission given. No commission given. अब इन दो कंडीशंस में अगर कमीशन दिया गया है तो यहां पे दो एंट्री होगी. एक एंट्री होगी पेमेंट की, पेमेंट ऑफ कमीशन टू पार्टनर. अगर पार्टनर को हम लोग पैसा दे रहे हैं किसी चीज किसी पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन को मॉनिटर करना है, डिसोल्यूशन को मॉनिटर करना है, तो उसके लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा. पार्टनर का कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं. और
और हमारा जो एक्सपेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो गया हमारा। अब जो एक्सपेंस होगा, नो एंट्री फॉर expense unless mentioned in the question। अब क्या है इसमें सिचुएशन, क्या कह रहा है, पेमेंट अगर कमीशन देना है तो हम पार्टनर को कमीशन देंगे क्योंकि वो हमारा डिसोल्यूशन को मॉनिटर कर रहा है। लेकिन एक्सपेंस की एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, जो एंट्री हमने यहाँ की है वो करेंगे नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम पार्टनर को कमीशन भी देंगे और हम क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे कमीशन की भी एंट्री करेंगे और एक्सपेंस की भी एंट्री करेंगे। ठीक है। अगर कुछ भी कोई भी चीज़ हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उस क्वेश्चन में हम लोग कुछ भी कोई भी चीज़ हम लोग वहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मान लेंगे कि कमीशन दे दिया गया हम लोगों ने। इसका मतलब कि अब जो एक्सपेंस जो हो रहा है, जो एक्सपेंस जो इनकर हो रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो एक्सपेंस उस पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी है, तो उसके लिए कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे कंडीशन में कंपनी नॉर्मली कोई एंट्री नहीं करती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि हम लोग कंपनी एक्सपेंस भी देगी तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेंस वाली ये वाली एंट्री फिर से करनी होगी। ठीक है। और अगर कोई कमीशन नहीं दिया जा रहा है, इफ नो कमीशन इज गिवन, ओनली पार्टनर इज आस्क्ड टू मॉनिटर द सीन, मॉनिटर द डिसोल्यूशन, then only the same entry will be done there also. Okay, so little bit complexity in the situation when commission is paid. Otherwise simple normal expense entry we will make for realization expense. Very less things are remaining after treatment, after closing all the books of account, after realizing the assets, after realizing the liabilities. Now it's time to move to the next step in realization. Now the next step is treatment of undistributed profit. Undistributed profit. This treatment include the treatment of reserve. We can write free reserve, normal reserve, which include general reserve and profit and loss balance. Okay. Another one is reserve fund against liability or asset. It especially investment fluctuation fund, that is IFF, and workman compensation fund, that is WCF. And last is liabilities, compulsory liabilities you can say. Example is EPF, Employee Provident Fund. Whenever we are dealing with these three conditions, situations,
वी पहले हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है। ऐसा पास्ट में कमाई गई ऐसा अमाउंट जो अभी हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए उसको किसी न किसी कारणवश, किसी नियम कानून के तहत उसको बचा के बिजनेस में रखा गया है, ताकि बिजनेस में आने वाली किसी मुसीबत, किसी विपदा, किसी अनहोनी से निपटा जा सके। और ऐसी तीन तरह की चीज़ें हैं जो हमारे प्रॉफिट से बनाई गई हैं। इनका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। इसका ट्रीटमेंट इसका सिंपल ट्रीटमेंट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। इट विल नॉट बी रियलाइज्ड। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। वी नीड टू जस्ट distribute it to the partners. It means general reserve if there is any, profit and loss balance if there is any, debit to partners कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स विथ दीज आइटम। ओके, द नेक्स्ट थिंग, फंड अगेंस्ट लाइबिलिटी एंड एसेट। ऐसे फंड और ऐसे फंड जो हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए, किसी स्पेसिफिक एसेट के से जनरेट होने वाले रिस्क को कवर करने के लिए बनाया है, तो ऐसे रिजर्व्स को हम लोग, उनका ट्रीटमेंट अलग किस्म का होता है। इनके ट्रीटमेंट में पहला स्टेप क्या होगा? ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। इनको हम लोग क्या करेंगे? इनको हम लोग सिंपली रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री आपको पता है, दे आर शोन इन लाइबिलिटी साइड। तो मोस्टली देयर बैलेंसेस आर क्रेडिट बैलेंसेस। वी नीड टू डेबिट देम, IFF, WCF, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि क्या बोला, क्यों बोला इसको फंड अगेंस्ट लाइबिलिटी और एसेट। WCF मान के चलते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। हमारे किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाए, कोई उसको आपदा पड़ जाए और उसकी ज़रूरत के लिए कंपनी ने ये फंड बना के रखा हुआ है कि जब भी ऐसी कोई घटना होगी तो हम इसी फंड का इस्तेमाल करके उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट करते समय हम अगर ऐसी कोई लायबिलिटी हमारे क्वेश्चन में दी गई है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे और सिर्फ उसका एडजस्टमेंट होगा और कोई भी चीज़ हमें उसके साथ नहीं करना है। तो सिर्फ एक काम इसके साथ क्या करना है, हमें इसे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, नथिंग एल्स। वी डोंट नीड टू वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स विथ दीज आइटम्स। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि इन दोनों आइटम्स का रियलाइजेशन नहीं होना है। रियलाइजेशन नहीं होना है मतलब दे आर नॉट टू बी पेड एक्चुअली। ये किसी दे आर अनपेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो कि पार्टनर्स को देनी है हमें, बट दे आर नॉट एक्चुअली अ लाइबिलिटी which mandatorily the firm need to be paid। तो हम लोगों ने इसका कोई भी रियलाइजेशन अभी तक नहीं किया है क्योंकि
ये हमारे जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये हमारे पार्टनर्स को चला जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें सारी चीज़ें बची हुई चीज़ें हमें पार्टनर्स को ही देनी है, हमें किसी दूसरे क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है। इसके लिए हम लोगों ने इनका रियलाइजेशन नहीं किया। अब आते हैं हम लोग ईपीएफ पे, जो कि एक कंपलसरी लाइबिलिटी है, एक लीगल लाइबिलिटी है। ये हमारे एम्प्लॉयज को मिलने वाला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद उनको कंपलसरी अमाउंट एक मिलना होता है। उस अमाउंट के लिए हम लोगों ने ये फंड बनाया है। दिस फंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। That's why we need to first transfer it to realization and then realization to cash. पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ईपीएफ क्या बनेगी एंट्री इसकी, ईपीएफ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। And another entry, realization. That is, it has to be paid. So, realization account, debit to cash. So, they are slowly but steadily we have completed the analysis of the recordings or postings of a realization account, which is the very important step in dissolution of firm. Now in very last I just want to draw a picture in your mind that what are the process we need to follow, what are the process which we need to follow in accounting when we are dissolving a firm. So let's have the picture of the process which we follow in dissolution of a firm. First of all, we need to close the books of account. Close the books of accounts, especially assets and liabilities. Okay, and how will we close? By transferring the balance to a realization account. Okay, first step completed. We are winding up our business, and winding up of our business in accounting start with closing of books of account. After closing all the accounts, start realization of assets and liabilities. When realization of asset is said, it means we are selling the assets. When realization of liability is said, it means we are settling the liabilities. We are paying the liabilities back. Okay.
then treatment of undistributed profit, that is reserves, okay, and after treating the undistributed profit, what we'll do? Then close realization account. By transferring the balance to partners capital account. ओके, रियलाइजेशन हम लोगों ने बना लिया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन को बैलेंस करेंगे और जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वी विल नॉट कीप द बैलेंस एज बैलेंस बीडी और सीडी, नो, वी विल ट्रांसफर। हम लोग उस बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा रियलाइजेशन अकाउंट भी वहाँ पे बंद हो जाएगा। अब हमारे पूरे बिजनेस में सिर्फ दो अकाउंट चालू है, एक हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सबसे लास्ट में बंद होता है। कैश और कैपिटल दोनों अकाउंट्स एक ही साथ बंद होंगे, क्योंकि हमें याद होगा जब हम लोगों ने 11th में पहली एंट्री की थी अपनी कि समवन ब्रॉट 10,000 एज कैपिटल, किसी ने बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपये कैपिटल अपने बिजनेस के लिए लाया वो अपने बिजनेस में। तो उस समय पे हम लोगों ने क्या एंट्री की थी, शायद आप लोगों को याद हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आया और साथ साथ हमारी कैपिटल भी, तो कैपिटल एक लायबिलिटी है जो भी बढ़ रही है और कैश हमारा डेबिट हो रहा है, तो कैश भी बढ़ रहा है। तो दोनों पहली एंट्री दोनों एक साथ होती है और क्लोजिंग एंट्री में भी दोनों ही एक साथ बंद भी होते हैं। तो इसीलिए सारे अकाउंट्स धीरे 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 हम लोगों ने बंद कर दिए। अभी हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है? कैपिटल और कैश अकाउंट बचे हुए हमारे, जिनका ट्रीटमेंट हम लोगों को यहाँ पे कैश, हम लोग कैश, इसके बाद उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे। दैट वी विल अंडरस्टैंड when you guys start solving questions and you start asking me, तब उन चीज़ों को, उन स्टेप्स बताने में। लेकिन ये जो मोटा मोटी जो स्टेप्स है हमारे सामने वो यही है। इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट will be, partners capital account will be settled by paying, या तो उनको पैसा देंगे, और by collecting। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हमको उनसे पैसा, पार्टनर्स को ही पैसा देना पड़ता है। अगर कंपनी लॉस में है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी लायबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट्स कम हैं, तो ऐसे पोजीशन में कंपनी, और नॉर्मली जब डिसॉल्व हो रही है कंपनी तो उसका ये भी कारण हो सकता है कि कंपनी की एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज़्यादा है। तो ये सीन भी हमें देखने को मिल सकता है। एट द बिगिनिंग, इनिशियल स्टेज, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू कम, बट एनीथिंग कैन हैपन। वी शुड नो दैट पार्टनर्स को पैसा मिल भी सकता है, उनको पैसा कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है अपनी कंपनी को क्लोज करने के लिए। ओके, अब ये जो भी पैसा हमारे कैश का बैलेंस था, या तो हम लोगों ने इनमें बांट दिया, या फिर जो हमारे कैश का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था वो इन लोगों के पेमेंट के द्वारा उतना बैलेंस बराबर हो जाएगा। और ये एक्टिव स्टेप होते ही हमारा कैश